नमस्कार दोस्तों, I wish you a very happy Diwali and a prosperous new year. While recording this video, you might get the noises and disturbances of the crackers. Enjoy them. That has been the tradition of this country. So don't worry if you hear some crackers and cracking noises. As usual, I have come with a subject for the urban cooperative banking sector for which I am concerned. The idea of starting this channel was only that the urban cooperative banks in the country are not getting the right kind of input, and therefore for making various decisions they have to run from pillar to post. And therefore for the past 3 or 4 months I am doing this, where I pick up a subject and do a presentation the way I find it necessary for the sector, and to only to ensure that you be a compliant bank. There can be political thinking and all those things, but then let's understand that the laws of the countries are required to be followed. Today I am going to deal with a totally different subject, which is not normally picked up by the urban cooperative bankers, and we only know a little bit about it because even during the professional examination not much is required to be studied. We don't even look at that particular law which has been passed by the parliament, and I'm going to give you key input about one particular area which, as an urban cooperative banker, you should know, and that is DICC. Now, DICC, its background, its commencement, and the way the premiums are being loaded, what will happen if a bank fails to pay the premium, what if the risk-based premiums are introduced, so on and so forth. All these questions have been bogging my mind for the last couple of years, rather, to enable me to understand as well as to help you understand what the hell DICC is all about and how it started into being and how it is ensuring the depositors' interest, etc. I have a person, probably all of you could be knowing him. He has worked with DICC for 17 years. And he has been very famous in urban banking department then as a straightforward person. His name is Mr. Vivek Galsasi. He has worked with the DICC for 17-18 years and thereafter with various other departments of Reserve Bank of India, and more particularly with the urban cooperative banking division in the area of inspection and supervision. He has seen how banks commit errors, and he has helped the banks to ensure that they comply. I mean, if the intentions of a urban cooperative bank or the banker is not nasty one, here is one Mr. Gaisasi who has always helped them to understand what could be done and what should be done. So, I raised some 20-25 questions on the topic of DICC and requested Galsasi to have a chat with me on the subject. The chat was very long, almost for 50-60 minutes. And normally I find that it's very difficult for the urban cooperative banker to spend an hour at a stretch to listen or watch a video. Therefore, what I'm going to do is that I'm going to split the entire chat into two parts. Part 1 will be broadcasted today, and part 2 on next Sunday. Both these parts contain various questions. Enjoy the responses given by Mr. Gaisasi. I wanted him to talk in Hindi for the simple reason. I wanted that the reach of this video should extend to the other states of the country, especially Karnataka and Gujarat, where a lot of people watch my videos. If you like this video, please do share it, subscribe it. You have any question, please send it to my email ID. If you have a specific question about any particular situation concerning DICC, please mail that to me. I'll ensure that Mr. Vivek Gaisasi takes time out to respond to you.
Of course, through me, because I would like to insulate him for obviously open reasons. But then he's a person who can always help the banks. So today's topic is about DICC. There are questions which I have raised. He has answered fantastically, clarifying all the cobwebs in the mind. Please do watch, like, and share. And please do watch the part 2 of this on next Sunday. Part 2 of this interview on next Sunday. Thank you for watching. नमस्कार, कैसाची सर. आपण नमस्कार. Yes. बऱ्याच दिवसांनी भेटतो आहोत. आप जानते होंगे कि मैं एक यूट्यूब चैनल करता हूं जिसके ऊपर अर्बन कोऑपरेटिव बैंकों के बारे में जो छोटी मोटी जानकारी होती है या जो डिफ़िकल्ट टॉपिक्स होते हैं उसके बारे में डिस्कशन हम लोग करते हैं. दिस यूट्यूब चैनल इज़ बीइंग रन in my name under the title My Views, and today I would like to discuss various issues in respect of the DICC because of your past experience of serving with DICC, your experience of handling urban cooperative banks while you were in Reserve Bank of India, and of course there are several issues which the urban cooperative banks are not really aware of. And then what we do is that we categorically ensure that we pay the DICC premium regularly. And the payment of DICC premium is done with the idea that we should not be held responsible for not protecting the depositor's interest. Today I would like to discuss with you various issues about DICC which we have not heard या जिनके बारे में हमें कुछ जानकारी नहीं है. आपका अनुभव और आपका एक्सपीरियंस हम सब अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को फ़ायदेमंद होगा. तो कुछ सवाल है जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ. ऐसे भी कुछ सवाल होंगे कि जिसमें शायद आप जवाब नहीं देना चाहते हो, वो भी फ्रीडम आपके पास है. लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि जब आप अर्बन कोऑपरेटिव बैंकिंग सेक्टर को एड्रेस करते हो तो उन्हें जो चीज़ें मालूम नहीं है या जो चीज़ें पढ़ाई से मिलती नहीं है या रीडिंग में भी कहीं मिलती नहीं है, वो आपके अनुभव से मैं उन सबको देना चाहता हूँ, बांटना चाहता हूँ. सो द फर्स्ट क्वेश्चन सर टू यू इज दिस दैट प्लीज टेल अस समथिंग अबाउट DICC, how it started functioning in India, and what was the reasons behind its foundations and so on and so forth. See, the concept of the ensuring deposits held with the banks, that idea came into in the year 1948 when there was a banking crisis in Bengal. But government and RBI has given serious thought only in 1960 when the Lakshmi Bank and Palai Central Bank collapsed. Okay. So that concept has materialized into the formation of the Deposit Insurance Act, and it has come into effect on 1st January 1962. Earlier, only Deposit Insurance Corporation was functioning, but slowly another thought has come into the mind of Reserve Bank of India, and they have promoted Credit Guarantee Corporation of India. And this DICGC, Deposit Insurance Corporation, functioning is the protection of small deposits, and Credit Guarantee Corporation has come into effect for giving protection to the banks for their advances to the small and weaker sections of the society. Earlier, in cooperative banks were not actually their deposits were not insured right from the beginning in 1962, but their cooperative banks come under the purview of deposit insurance only in the year 1968 when this Deposit Insurance Corporation Act was first amended. So it has come into effect in 1968, cooperative banks. Earlier, the premium was hardly 5 paise per 100 rupees deposit, and first in 1962 deposit protection was allowed
up to rupees 1,500 only. Okay. So slowly this insurance cover has been raised from 1,500 to 5,000, then 10,000, then 30,000, then 1 lakh in 1993. And from 1993 it has come in 4th February 2020, it has been raised to 5 lakhs rupees. But you see the amount of premium is charged to the banks. It is 5 paise in 1962. Then 1971 it has been reduced to 4 paise. Okay. Then again in 5 years later it has been again raised to 5 paise. Okay. Then slowly it has been raised to 8 paise, 10 paise, and now it is from 1st April, it is 1st April 2020, it is 12 12 paise. paise. Right. So insurance amount of insurance premium in paise, it has not been increased substantially, whereas the cover has been increased substantially right from the first from 1,500 to 5 lakhs 5 rupees. lakhs rupees. Then this Credit Guarantee Corporation and DI's Deposit Insurance Corporation, they were merged in 1978. Okay. Then DICGC has come into the picture. Okay. Both were separate subsidiaries of Reserve Bank of India, Deposit Insurance Corporation and Credit Guarantee Corporation. But to ensure smoothness in functioning, it was merged in 1978 and with DICGC is formed. Then afterwards, the banks were commercial banks were asked to give sanction loans to the weaker sections, and Credit Guarantee Corporation was collecting guarantee fees. But that scheme was a small loan guarantee scheme. 1970 was formed, but it was voluntarily. Many banks have started opting it out. First, State Bank of India has opted out. Then ultimately in 2003 to 2004 it was closed. So now only Deposit Insurance Corporation, though name is Deposit Insurance and Credit Corporation, function is only ensuring deposits remain. Okay. I remember in 90s the small loans Guarantee scheme. which were granted under various government schemes like IRDP and the weaker section loans, and Mostly what the priority sector sector loans. What the banks were doing was that give the money. There was no concept of NPA then, and once the default occurs, straight away claim the amount from the Credit Guarantee Corporation, and forget about whatever the money that has gone. So in reality, the schemes at that time were such that the Credit Guarantee Corporation was simply coughing out money. That was the idea. Of course, the cooperative banks were not in picture. Now, I believe that Reserve Bank of India is the complete owner of DICC. They have, Yes, it is fully owned subsidiary of DICC. DICC. So there is no other commercial or public sector or central government. Nobody is involved. Fully owned by Reserve Bank of India. Okay. We will go to the next question. With this history, can you tell our viewers how many banks are insured and any data on the deposits which are secured, or some such information if you can share with our viewers, it will be of great help. अभी तो फिलहाल मेरे ख्याल से 2058 बैंक्स है पूरा DICC का इंश्योरेंस कवर लेते हैं, और 98.1% ऑफ द डिपॉजिट्स, एसेसिबल डिपॉजिट्स आर कवर अंडर डिपॉजिट इंश्योरेंस का. अकाउंट्स देखेंगे तो आप 252 करोड़ अकाउंट्स है ओके टोटल डिपॉजिट इंश्योरेंस कवरेज के अंडर एज ऑन 31 मार्च 2021 का ये फिगर है. 252 करोड़, वो तो हमारे पॉपुलेशन से भी ज्यादा हो गया. तो ये नंबर ऑफ अकाउंट्स है. हाँ. लेकिन अमाउंट वाइज बैलेंस आप देखेंगे तो 5 लाख तक ही है इंश्योरेंस कवरेज, तो इट कवर्स जस्ट 50.9%. तो फिर वो रिजर्व बैंक हर बार कहती है कि आपके 99% डिपॉजिट सिक्योर्ड है, वो कैसे? दैट इज अप टू 5 लाख नो. ओके, दैट इज 5 लाख, अप टू 5 लाख. अप टू 5 लाख. ओके सर, हम अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स वी ऑल पे आवर DICC प्रीमियम वेरी रिलीजियसली, और हर बार वो प्रीमियम
साल में हम दोबारा भरते हैं, वी पे द प्रीमियम ट्वाइस, and we find that when the Reserve Bank of India inspectors come and check this, they comment on several erroneous areas कि भाई आपने वो जो calculation करते वक्त you have not done certain things correctly. So can you talk about the normal errors which the urban cooperative banks, or for that matter any other bank in the country, is making while ensuring all the deposits which are with them? देखिए, फर्स्ट इज बैंक हैज टू कैलकुलेट द एसेसिबल डिपॉजिट्स. ये एसेसिबल डिपॉजिट्स में देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट का डिपॉजिट्स नहीं आता है, स्टेट गवर्नमेंट्स का भी डिपॉजिट नहीं आते. देन इंटर बैंक डिपॉजिट आर आल्सो एक्सक्लूडेड फॉर पेमेंट ऑफ डिपॉजिट इंश्योरेंस प्रीमियम. Okay. Then common mistake generally, banks are not taking a credit balance in CC account while calculating accessible deposits. ओके. हाँ. अगर Then, किसी हाँ, में अगर किसी के अकाउंट में क्रेडिट क्रेडिट बैलेंस है, बैलेंस है तो वो भी इंश्योरेंस कवर में आना चाहिए. ओके, वो बैंक्स मोस्टली इग्नोर करती है. देन एक्रूड इंटरेस्ट ऑन एफडीज, दैट इज आल्सो टू बी कवर्ड. ओके, वो नहीं कर रही है. ओके. और जैसे एग्जाम्शन है, जैसा डेफ का भी एग्जाम्शन है, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड एजुकेशन अवेयरनेस फंड है, वो तो डिपॉजिट्स एसेसिबल डिपॉजिट्स में नहीं आते, उसको एग्जाम्शन है. तो वो भी देना, एक्सक्लूड करना ये ऐसे चाहिए. एक्सक्लूड करना चाहिए डेफ का भी. ओके, क्योंकि ये कैलकुलेशन के और ऊपर हाँ, और दूसरा पे ऑर्डर्स, अभी तो कंसेप्ट ये हो गया, अभी तो इतना नहीं है, लेकिन पे ऑर्डर्स का जो बैलेंस है उसमें जो अकाउंट क्लोज करके पे ऑर्डर इशू किया है 31 मार्च को आउटस्टैंडिंग है, सेविंग क्लोजर के लिए आते हैं ना लोग अकाउंट, वो इसका जो मतलब ये कि जो पे ऑर्डर आप इशू करते हो वो अगर अकाउंट क्लोजर के बारे में है और वो अगर रियलाइज नहीं हुआ है तो यू हैव टू इंक्लूड दैट नो, एक्सक्लूड करना चाहिए. एक्सक्लूड करना चाहिए. इट इज डन फॉर द अकाउंट क्लोजर. ओके, 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 ओके. ये थोड़ा ध्यान देखना चाहिए इसमें. Okay. और दूसरी चीज ऐसी है कि अभी आरबीआई ने कंपलसरी किया है कि ये जो डीआईसीसी का फॉर्म का कैलकुलेशन है फॉर्मेट का, दैट इज टू बी सर्टिफाइड बाय स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स. सो उसकी वजह से अभी थोड़ा मिस्टेक्स थोड़ा कम हो रहा है. ओके. सर, मेरा और एक सवाल ऐसा है कि इफ द अर्बन कोऑपरेटिव, फॉरगेट अबाउट द पब्लिक सेक्टर और कमर्शियल बैंक्स, लेकिन अगर कोई अर्बन कोऑपरेटिव बैंक ये डीआईसीसी प्रीमियम पे नहीं करती है तो आरबीआई क्या एक्शन ले सकती है? देखो, डीआईसीसी एक्शंस फर्स्ट लेती है क्योंकि इफ द बैंक फेल्स फॉर पेमेंट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम consecutively for 3.5 years, then DICC has right to deregister that bank. Deregister doesn't mean delicensing. No, deregister. लाइसेंसिंग का नहीं है, लेकिन वो बैंक का रिक्वेस्ट पे अगर वो बैंक पूरा डिफॉल्ट जो है और पेनल इंटरेस्ट उसके साथ दे सकती हो, अगर देती है टाइम लिमिट में, तो अगेन दे कैन ज्वाइन दैट. ऐसा उदाहरण कभी आया है कि नहीं, मोस्टली 1.5 ईयर का पेंडिंग रहता है इंश्योरेंस का और डिले हो जाता है. वो सीरियस नहीं मानते हैं क्योंकि वो तो अभी तो तुरंत डीआईसीसी बैंक को बता देती है कि आपका अभी तक ये हाफ ईयरली का आया नहीं है करके, तो पहले ही इसमें बोल देती है. तो 99% अभी कोई ऐसा चीज होती ही नहीं है. एवरी बैंक इज वेरी प्रॉम्प्ट इन पेइंग द डिपॉजिट इंश्योरेंस. ये जो डिपॉजिटर बंदा है जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक में पैसे रखता है, उसे ये डीआईसीसी प्रीमियम पे किया है या नहीं किया, ये वो पूछ सकता है बैंक? हाँ, एक्चुअली ऐसा है कि वो ब्रांच में भी नोटिस लगाना पड़ता है कि ये डिपॉजिट इंश्योरेंस प्रीमियम ये बैंक ने ये क्वार्टरली इतना पैसा भरा है करके नोटिस लगाना पड़ता है ब्रांच में. ऐसा डीआईसीसी बोलते हैं कि मोस्टली ऑल ब्रांचेस में आप ये नोटिस लगा दीजिए और एनुअल रिपोर्ट में भी उसका जिक्र होना चाहिए कि भाई ये डीआईसीसी ये इंश्योरेंस प्रीमियम बैंक बराबर भर रही है करके. ओके. और दूसरा ये है ना, मेन मिशन क्या है डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन? हाँ, टू इंश्योर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन द बैंकिंग सिस्टम बाय प्रोटेक्टिंग द डिपॉजिट्स ऑफ स्मॉल डिपॉजिटर्स. ये डीआईसीसी का एक मिशन है फर्स्ट, वो ध्यान में रखिए. सर, और एक सवाल ये प्रीमियम के बारे में है कि डीआईसीसी करोड़ों में प्रीमियम इकट्ठा करती है, कलेक्टिंग ह्यूज प्रीमियम, और वो प्रीमियम इकट्ठा करने के बाद में वो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक या कोई भी कमर्शियल बैंक अगर वो
लिक्विडेशन में जाती है या फिर इसमें जाती है तो उसको डिपॉजिटर्स को पैसा देना पड़ता है। तो ये जो साल में प्रीमियम कलेक्ट होता है उसका क्या परसेंटेज उनको क्लेम सेटलमेंट में देना पड़ता है, इसका कुछ अभी देखिए लास्ट ईयर का आप अगर ध्यान देखिए 2020-21 में तो डीआईसीसी ने 992 करोड़ का क्लेम्स प्रोसेस किया है। टोटल अमाउंट 992.50 करोड़। लेकिन अगर ये परसेंटेज देखेगा डीआईसीसी का ये ईयर में 220 में कितना प्रीमियम मिला है, अराउंड मोस्टली अबाउट 12,000 करोड़ है, लेकिन इट कम्स टू हार्डली 5.66%। जितना प्रीमियम मिला है उसमें क्लेम सेटलमेंट का रेशियो हार्डली 5.66% है। ओके। नॉर्मली ऐसा होता है कि कमर्शियल बैंकों को छोड़ दीजिए या पब्लिक सेक्टर बैंकों को छोड़ दीजिए, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स विच आर ओन्ड बाय मेंबर्स, वो जब तकलीफ में आती है या फिर उनके ऊपर मोरेटोरियम लग जाता है या फिर कोई डायरेक्शन लग जाता है, उसके बाद में वो जो डिपॉजिटर बनता है ना उसको कुछ पैसे रिस्ट्रिक्शन में मिलते हैं कि भाई 1,000 मिलेंगे, 10,000 मिलेंगे, जो भी अमाउंट है वो। तो ये समझ में नहीं आता है कि जब भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कोई डायरेक्शन देती है तो इसमें डीआईसीसी का रोल चालू कब होता है, वो कब इसमें इंटरवेंशन करती है? अभी रिसेंट अमेंडमेंट एक्ट होने के बाद डीआईसीसी का रोल जैसा डायरेक्शन लगता है तभी चालू होना चालू हो गया है, क्योंकि ये रिसेंटली अमेंडमेंट जो किया है वो एक्ट एप्लीकेबल हो गया 1 सितंबर 2021 से, गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन आने के बाद। अभी जो बैंक डायरेक्शन में जाएंगी फिलहाल तो डीआईसीसी का रोल तुरंत चालू हो जाता है, जाएगा। जैसा अभी 21 बैंक्स को जो ऑलरेडी प्रायर टू 1 सितंबर डायरेक्शन में है उनका तो अप टू 5 लाख रुपीज पेमेंट का प्रोसीजर चालू हो गया है। अभी नया कोई आएगा डायरेक्शन में तो उसका भी नोटिफिकेशन डीआईसीसी को जाता है और उनको भी प्रोसीजर ये चालू करना पड़ेगा सर अप टू 5 लाख का। सर आप ये तो ये बिफोर लिक्विडेशन जो अमेंडमेंट एक्ट किया है उसकी वजह से पहला तो लिक्विडेशन होने तक राह देखना पड़ता था डिपॉजिटर्स को पैसा मिलने के लिए। अभी लिक्विडेशन होने की राह देखने की जरूरत नहीं है। एक बैंक अगर वो स्ट्रेस में आ जाएगी, अगर रिजर्व बैंक डायरेक्शन लगा लेती है फिर भी वो 5 लाख तक उसको रिलीफ मिल सकता है विद इन 90 डेज। सर इसमें आपको ऐसा नहीं लगता है क्या कि अगर डीआईसीसी का रोल डायरेक्शन लगने के बाद आ गया तो वो जो बैंक रिवाइव होने के जो चांसेस है वो खत्म हो जाते हैं? खत्म नहीं, अभी देखिए ऐसा है कि वो साइमल्टेनियसली चालू हो जाता है, क्योंकि अभी आप एक्सपर्ट कमेटी का रिकमेंडेशन देखेंगे ना तो भी उसमें भी यही बोला है कि आरबीआई को प्रोएक्टिव बनाने के लिए आरबीआई शुड बी प्रोएक्टिव, ऐसा करके एक्सपर्ट कमेटी का रिजोल्यूशन में रिकमेंडेशन है। तो हिसाब से साइमल्टेनियसली वॉलंटरी मर्जर के लिए या स्मॉल फाइनेंस बैंक में कन्वर्ट करने के लिए आरबीआई थोड़ा प्रोएक्टिव रोल करना चाहती है, लेकिन ये जो इनिशिएटिव है वो आरबीआई चाहती है कि वो जो स्ट्रेस बैंक है वो ही ले ले। जैसा कमर्शियल बैंक्स में आप देखेंगे, यस बैंक का हो गया, अभी लक्ष्मी विलास बैंक या दूसरा कौन सा बैंक का हो गया, आरबीआई ने एकदम प्रोएक्टिव रोल करके विद इन 21 डेज में सब यस बैंक का लफड़ा सॉल्व कर दिया। वैसा हम लोग चाहते हैं कि वो कोऑपरेटिव बैंक में भी इतना इनिशिएटिव आरबीआई लेना चाहिए, लेकिन फिलहाल इतना लगता नहीं है वो ले रही है करके। सर आप थोड़ी चाय पियेंगे? मैं बोलूँ चाय के लिए? अगर आप पीना चाहते हैं तो बात करेंगे। ओके। अभी आपने ये नए अमेंडमेंट्स के बारे में बात की तो मेरा अगला सवाल उसी से जुड़ा हुआ है। अभी ये जो डीआईसीसी एक्ट में जो अमेंडमेंट्स आई है ना उसमें क्या फीचर्स है और क्या अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को उसके बारे में जानना चाहिए? मतलब व्हाट आर द मेन फीचर्स एंड व्हिच आर द कंडीशंस व्हिच द अर्बन कोऑपरेटिव बैंकर शुड नो? अभी इसमें मेन जो अमेंडमेंट हो गया है वो सेक्शन 18A एक नया इंसर्ट कर दिया है एक्ट में, अभी अमेंडमेंट में वही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके मुताबिक बैंक्स को जो स्ट्रेस बैंक आएगा उसका डिपॉजिटर्स दे शुड नॉट वेट टिल द लिक्विडेशन प्रोसेस बिटवीन एट द टाइम ऑफ द व्हेन द डायरेक्शंस आर इम्पोज, वो दिन से 90 डेज तक
स्मॉल डिपॉजिट्स को अप टू 5 लाख का रिलीफ मिल सकती है। उसका प्रोसीजर चालू हो जाएगा 45 डेज में। फर्स्ट बैंक्स को विलिंगनेस और डिपॉजिटर्स को विलिंगनेस फॉर्म भर के डीआईसीसी को देना पड़ेगा फर्स्ट 45 डेज। देन डीआईसीसी उसका सीए फॉर्म्स के हिसाब से वेरिफिकेशन करेंगी नेक्स्ट 30 डेज में, और ये सब वेरिफिकेशन होने के बाद नेक्स्ट 15 डेज में डीआईसीसी का एक लमसम अमाउंट उस स्ट्रेस बैंक को जाएगा, फिर वो अपना डिपॉजिटर्स को पैसा देना चालू करेंगे। तो ये 90 एज पर दिस अमेंडमेंट एक्ट जो हो गया उसमें 90 डेज का टाइम बाउंड लगा दिया है। जैसा ये बहुत अच्छी चीज हो गई है यार, वो 90 डेज में खत्म होना ही चाहिए। जैसा विलिंगनेस फॉर्म का डेट निकल जाने का जो 45 डेज का ड्यूरेशन दिया है वो हिसाब से बैंक को सबका विलिंगनेस फॉर्म लेना ही पड़ेगा। फिर सीए फॉर्म्स डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन अपॉइंट करेंगी, वो वेरीफाई करेंगी नेक्स्ट 30 डेज में, और नेक्स्ट 15 डेज में उसका पेमेंट हो जाएगा, अकाउंट को डायरेक्ट क्रेडिट हो जाएगा। ओके, ऑफ कोर्स हमारी यही इच्छा रहेगी कोई भी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक इस तरह की डिफिकल्टी में ना आए, अच्छे से काम करे, रेगुलेटरी कंप्लायंस करे और डिफिकल्टी में ना आए। डीआईसीसी के बारे में एक और सवाल जो आ रहा है ऐसा है कि थोड़ा कन्फ्यूजन एवरेज कोऑपरेटिव बैंकर जो ऑफिसर लेवल पे काम करते हैं या थोड़े सीनियर लेवल पे काम करते हैं वो ऐसा है कि हम लोग इसको लाइफ इंश्योरेंस या नॉन लाइफ इंश्योरेंस की तरह नहीं देखते हैं। जैसे अमेरिका में जो डिपॉजिट इंश्योरेंस है एफआईडीसी डिपॉजिट जब इंश्योर करता है तो उसके पास जो इंश्योर्ड पार्टी है यानी बैंक्स, उनके इंस्पेक्शन के राइट्स या अथॉरिटीज मौजूद है। आई मीन दे हैव द राइट्स टू इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ द इंश्योर्ड बैंक। तो इस तरह का कोई चीज डीआईसीसी इंडिया में नहीं करता है। ये इस सवाल की बेसिक वजह यह है कि जो इंश्योरेंस प्रीमियम का जो रेट है वो ऐसा है कि कोई भी बैंक हो उसको रेट कॉमन है, सेम है, तो इसमें रिस्क वेरिएंस नहीं आता है। कोई भी बैंक हो इंडिया में उसको 12 पैसे के हिसाब से प्रीमियम देना है, और हालांकि हर एक बैंक की रिस्क अलग अलग होती है। तो इसमें बुक्स का इंस्पेक्शन या बुक्स की पड़ताल या अंडरस्टैंडिंग द ट्रूथ बिहाइंड द बैलेंस शीट ऑफ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, इस तरह से डीआईसीसी कोई रोल या पहल नहीं करती। तो आपका क्या विचार है इस बारे में? पहला डीआईसीसी का जो रोल है वो डीआईसीसी एक्ट के मुताबिक चलती है, उसका फंक्शंस। वो पार्लियामेंट में जो एक्ट फॉर्म हो गया डीआईसीसी एक्ट, वो हिसाब से डीआईसीसी काम करती है। और ये जो इंस्पेक्शन की बुक्स की बात आपने की है, तो सेक्शन 35 डीआईसीसी एक्ट में वो प्रावधान है कि दे कैन हैव एक्सेस टू द रिकॉर्ड्स ऑफ द बैंक्स। डीआईसीसी को पूरा प्रावधान है, अधिकार है अंडर सेक्शन 35A, वो पूरा रिकॉर्ड दे सकती है बैंक्स का डिपॉजिट का, अगर उनके इसमें आएगा तो। बट दैट इज टू बी डन थ्रू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। दे विल नॉट कम, they will request RBI to do inspection on if they found some irregularities. 35A का inspection होता है, उसी में करते हैं। But it will be done through Reserve Bank of India. Because DICC people will not come. Okay. Any irregularities in DA forms और ये सब होएगा तो स्पेशल स्क्रूटिनी के लिए वो इनको बोलेंगे RBI को, जब भी आप इंस्पेक्शन को जाते हैं तभी ये भी जरा स्क्रूटिनी करो करके, अगर DICC को डाउट आता होगा। ओके यानी इंस्पेक्शन की प्रावधान है। इट इज ओनली वाया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया दे डू इट।